السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر کے ریئیکشن۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان کا بدلہ کس نے لیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے کم عمر بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے ان کے سر قلم کیے گئے۔ حضرت امام حسین کو شہید کر کے ان کا بھی سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، قلم کر دیا گیا۔ ان کے گھرانے میں عورتوں کی عزت پامال کی گئی، دوپٹے کھینچنے کی، چادریں کھینچنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ کس مرد مجاہد نے واقعہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بدلہ کس نے لیا، تو ان کا اہل بیت سے کیا تعلق تھا، محمد کے خاندان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا کیا تعلق تھا۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ جب اسے امام مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید ثقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشی ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہے۔ لہذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10
10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन और आपके साथियों को मैदान करबला में बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया और आपके सर को काटकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मुख्तार को इमाम हुसैन के सर को दिखाने के लिए दरबार में बुलाया गया। मुख्तार ने जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखा तो बहुत गिरिया उजारी करने लगा और रोते हुए अपने सर पर मारने लगा। उसी वक्त मुख्तार ने अपने दिल में यह कसम खा ली कि वो इमाम के कातिलीन को चुन चुन कर मारेगा और आप और आपके अहले बैत का क़िसास लेकर रहेगा। कुछ दिनों बाद इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को कैद से रिहा कर दिया और उसे हुक्म दिया कि वो कूफा से बाहर चला जाए। मुख्तार सक़फ़ी ने कूफा को खैराबाद कहा और अपने सीने में दहकते हुए बदले की आग को लेकर ताइफ चला गया। मुख्तार ने बहुत सब्र और हिकमत से काम लिया। उसने पहले अपने तमाम पुराने साथियों को जमा करना शुरू किया और एक छोटी सी फौज बनाई। मुख्तार ने अपने पुराने साथी इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर को भी अपने साथ मिला लिया, जो हजरत अली के जानिसार सिपाही मालिक अश्तर का बेटा था और अहले बैत रसूल से बेपनाह मोहब्बत रखता था। इब्राहिम के पास भी छोटी सी लश्कर थी जिसे मुख्तार ने अपने फौज में मुल्हिक कर दिया। इसके बाद मुख्तार ने अजमियों, ईरानियों और मवालियों को अपने फौज में शामिल होने की दावत दी। ये लोग दरअसल बनु उमैया के जुल्म और अरबी व अजमी तफरीक से परेशान थे, लिहाजा वो अजमी और मवाली जो अहले बैत रसूल के शिया थे मुख्तार के साथ हो गए। रफ्ता रफ्ता मुख्तार की ताकत में मजीद इजाफा हो गया। मुख्तार के रगों में खून की तरह दौड़ती अहले बैत से मोहब्बत उसे बार बार हुसैन इब्ने अली की शहादत याद दिला रही थी। मुख्तार अब क़याम के लिए तैयार था। मुख्तार ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ की कि उसे तब तक मौत न आए जब तक वो एक एक यजीदियों को कत्ल करके उनके नापाक वजूद से इस ज़मीन को पाक न कर दे। मुख्तार ने सन 63 हिजरी में सबसे पहले कूफा पर हमला किया। उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने अब्दुल्ला इब्ने मुती को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। मुख्तार ने उससे जंग किया और कूफा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। 66 हिजरी में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो इमाम हुसैन और आपके असहाब के खून का बदला लेगा, लिहाजा कूफा के शिया भी मुख्तार के साथ हो गए। अमीर मुख्तार सक़फ़ी ने अपने दरबार में एक शख्स को मुकर्रर किया था जिसने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जो मैदान करबला में यजीदी लश्कर में शामिल थे और जिन्होंने इमाम आली मकाम के काफिले पर हमला करके उन्हें शहीद किया था। इस फहरिस्त में जितने लोग भी शामिल थे मुख्तार ने उन तमाम लोगों को तलाश करवाया और उन्हें कत्ल करना शुरू किया, जिनमें शिम्र, खूली, अम्र बिन साद शामिल था। कहते हैं कि जब मुख्तार उन कातिलीन को पकड़ता तो उनसे पूछता कि करबला के मैदान में तुमने इमाम हुसैन पर कैसे कैसे जुल्म किए थे। वो पूरी दास्तान सुनाता और मुख्तार उस दास्तान को सुनकर ज़ारो कतार रोता था। सन 67 हिजरी में मुख्तार के सिपह सलार और साथी इब्राहिम अश्तर ने इराक के मकाम मौसल पर इब्ने ज़ियाद से जंग करके उसे भी कत्ल कर डाला। इब्ने ज़ियाद वही शख्स था जिसने इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक पर छड़ियां मारकर बेहुरमती की थी, लिहाजा मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद के कटे हुए सर को कूफा भेजने का हुक्म दिया और बिल्कुल उसी मकाम पर उसके सर को रखा जहां उसने इमाम हुसैन का सर रखा था। तिरमिज़ी शरीफ के रिवायत के मुताबिक जब इब्ने ज़ियाद के सर को कूफा की मस्जिद में रखा गया तो एक सांप जाहिर हुआ और उसके नाक के एक नत्थों में दाखिल होकर दूसरे सुराख से निकल गया। इस तरह उस सांप ने 3 दफा ये अमल किया और वहां से चला गया। ये इबरतनाक मंजर को अहले कूफा ने अपने आंखों से देखा। इसके बाद इब्ने ज़ियाद और अम्र बिन साद के सरों को मुख्तार ने इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास मदीना भेजा, जिसे देखकर आपने मुख्तार के हक में दुआ फरमाई। रिवायतों के मुताबिक मुख्तार के क़याम को इमाम सज्जाद की इजाज़त और हिमायत हासिल थी।
सन 68 हिजरी के बाद मुख्तार की इमारत कमजोर पड़ने लगी और इब्न जुबैर के भाई मसब ने कूफा पर हमला करके मुख्तार के किले का घेराव कर लिया। इस आखिरी लम्हे में मुख्तार ने गुस्ल की, अतर लगाई और नमाज अदा करने के बाद बारगाह इलाही में शुक्र बजा लाया कि उसे अल्लाह ने इतनी मोहलत दे दी कि उसने तमाम कातिलीन हुसैन को जहन्नम वासिल कर दिया। अब अगर उसे शहीद भी कर दिया जाए तो कोई गम नहीं। ये कहकर वो किले से बाहर आया और मसब की फौज से लड़ता हुआ शहीद हो गया। तारीख में मुख्तार की शख्सियत को बनु उमैया और नाज़ियों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार आज हर मुहिब्ब हुसैन के लिए हीरो है। गमे हुसैन से जख्मी दिलों की ठंडक है और मुख्तार के चाहने वाले आज तक उससे शदीद अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, जो कातिलीन हुसैन पर मौत बनकर गिरा। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि उस मर्द मुजाहिद का नाम मुख्तार सखवी था, जो बदले की आग में झुलस रहा था कि यजीद ज़ालिम को मार कर ही रहेगा। कि सुबहान अल्लाह, मैं सलाम पेश करता हूँ मुख्तार सखवी को। जैसे कि आज भी मुसलमान जो शिया हैं इसकी जुर्रत को सलाम करते हैं, आज भी इसको बहुत अकीदतमंद से याद करते हैं मुख्तार सखवी को। तो दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है तो मेरे अलावा जितने भी मुसलमान हैं उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। गैर मुस्लिम भी हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत रखते हैं। शहादत का वाक़या सुन के मेरे दिल खून के आंसू होता है। अब भी मुझसे ये वीडियो देखी नहीं जा रही थी। मैं जब भी सुनता हूँ वाक़या करबला, जो भी वीडियो देखता हूँ, मेरे पता नहीं मुझे अजीब सा होता है कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ, मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह अकबर, कितना बेदर्दी से उस ज़ालिम ने हज़रत इमाम हुसैन, उसके साथियों को, उनके घर वालों को, उनके ख़ानदान को शहीद किया। मैं मुख्तार सखवी की जुर्रत को सलाम करता हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाज़ी अब्बास, सलाम या अहले बैत, लब्बैक या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।